Hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So I am Sumant. Let's start the session for mocks practice series. So in this particular series we are going to discuss, in today's class we are going to discuss one important case study for ABM, and here we will cover one important topics, and from this topic, from this video, definitely will get 2 marks in the exams. So it's very easy one. And in case of ABM we know 2 modules, either module B and module C, that will give you marks definitely, right? So here we are going to discuss the HR module, right? Human resource management, that is a module C of ABM. And as I always say, that is, if you focus on the ABM in module C as well, you will definitely get good score, right? So चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं. सो ये रहा आज का हमारा जो क्लास, दैट इज, एक सेकेंड, okay. So here is one case study that is based on the personality type, right? So before reading this case study, we just need to know what are the types of the personality, right? So let me show you this, and later on we will also solve this case study as well. Okay, so here you can see there are 2 types of personality. There are 2 types of personality. One is type A, another one is type B. And just remember, this is very important, right? So who is type A personality, right? So if in one company, one is Ram and second one is Hari, right? So if Ram is a type A personal and Hari is a type B personal, then who is a type A? So these are the characteristics. Impatient, nervous, he will not have the patience in any types of situation. He will feel nervous while dealing with the customers in case of bank. No time to relax and not enjoying the life. That means he will always show that, yeah, I have many work, I have मतलब for him the work will never ends. So उसके लिए कभी काम खत्म नहीं होगा और कभी एंजॉय खत्म नहीं कर सकता. एंड टाइप हम उसको भी बोल सकते हैं, दैट इज लेट सिटिंग. क्योंकि अगर इफ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क एफिशिएंटली, देन योर टाइम विल गो ऑन and will not go outside of your office and will not enjoy your life. So this late sitting will indirectly impact the life enjoying, right? So these are the characteristics. So these are the keywords you can relate with your things and you can easily remember. Impatience, nervous, no time relax, and no time for relax, and not enjoying the life as well, right? So this is not enjoying the life. Got it? So type B personality is completely opposite of type A. That means he will have some time to relax, sociable. So he will try to complete his work as soon as possible and try to sociable or socially connected with other people as well, right? And he has the patience. He has the patience while dealing with the customers, and he always plans to enjoy the life, simultaneously completing the work effectively, right? That means he wants to complete the work within the time frame and give the time for the life to enjoy as well, right? So these are the keywords for the type B personal. So Hari is a type B personal and Ram is a type A personal. And you can definitely just relate with yourself what you are doing in the bank. As we are working in the bank, what you are doing in your bank, either you are as you are, and type B personal will try to complete always the work, and he will not like that showing that I have work. Rather, he will plan to complete. He will schedule all the works one by one, and try to complete one by one as well, right? And what type A personal will do, he will have without completing. That means 1 2 3 work is having by, इट्स बिंग हैविंग बाय, दैट इज द ए के पास 1 2 3 काम है. सो ए क्या करेगा ना, तीनों काम एक साथ रख लेगा और बाद में बोलेगा कि मेरे पास ना 3 काम है. पर टाइप बी क्या करेगा, उसके पास भी 1 2 3 काम है, बट ही विल प्लान टू शेड्यूल एक के बाद पहले 1 को खत्म कर देगा, उसके बाद 2 के लिए प्लानिंग करेगा, उसके बाद 3 के लिए प्लानिंग करेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे ही विल बी कंप्लीटली फ्री एंड ही विल हैव द टाइम टू एंजॉय द लाइफ. एंड इन केस ऑफ पेशेंस while dealing with the customers in bank, we need to have some patience, right? So type will not have that much patience. It's small, very
very little cases he will react, but in case of B he will try to understand the customers, what's the need of that customers, and accordingly he will provide the service. So these are the basic difference of the personality types. Hopefully you got it. Just try to remember one type A. Whatever the type A, that will be completely opposite of type A is type B, right? So hopefully you got it. So let's read the case study for today, and hopefully आपके लिए what we are doing, that case study analysis with the concept is useful, right? So do your part as well, like, share, subscribe to our channel, and make us to bring a big community as soon as possible, right? चलिए case study को read करते हैं. See here, Mr. Shinde. So Mr. Shinde and Mr. Adani got their promotion recently. सो उन दोनों को, मिस्टर सिंधे एंड मिस्टर अदानी दोनों को प्रमोशन मिल गया है एक बैंक में, दैट इज यूनिवर्सल बैंक में, ठीक है. दोनों को ही एक साथ ही मिला है प्रमोशन. सो इन स्केल 2, सो दोनों स्केल 1 में थे, स्केल 2 में हो गए हैं. दैट इज स्केल 2 जैसे हमें पता है कि इससे मैनेजर पोस्ट, ठीक है. सो हैव बीन पोस्टेड इन गुड़गांव ब्रांच. सो एक ब्रांच का नाम है गुड़गांव, उस ब्रांच में उनको पोस्टिंग मिला है. They are working as manager operations handling 2 different departments of the branch. So उन दोनों को प्रमोशन मिला है एंड एक ही ब्रांच में पोस्टिंग मिला है, गुड़गांव ब्रांच में. एंड उन दोनों को मिला है they are working as a manager operations and 2 different departments. उन दोनों को 2 डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में उसी सेम ब्रांच में पोस्टिंग मिला है, ठीक है. सो ये रहा, देखिए आपका मिस्टर सिंधे के बारे में ये है, ठीक है, और ये आपका अदानी, मिस्टर अदानी के बारे में. गॉट इट. सो वो कैसे हैं? द कस्टमर्स एंड स्टाफ्स आर वेरी हैप्पी विद द सिंधे, ठीक है. द स्टाफ्स मतलब जो भी कस्टमर्स हैं, स्टाफ से वेरी हैप्पी है. सो क्यों है पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे. द स्टाफ कंसिडर्स हिम ए गुड गाइड एंड कस्टमर रेस्पॉन्स and customers repose faith in him and share details of their financial transactions and seek his advice. He keeps himself free to speak to customers, guide the staff. His table gives a very clean look. That means if we talk about the Mr. Shinde, हम क्या conclude करते हैं? देखिए यहाँ पर कि जो भी स्टाफ्स है, ऑल द स्टाफ्स एंड कस्टमर्स, उनको एक पॉजिटिव वाइब फील होता है, ठीक है. जैसे कि कस्टमर स्टाफ कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनको सिंधे जी से गाइड मिलता है, गुड गाइड ही इज गेटिंग, ठीक है. कस्टमर्स आर हैविंग ए गुड फेथ. दैट मीन्स उनको उनके ऊपर ट्रस्ट है क्योंकि मिस्टर सिंधे इज लिसनिंग टू देयर all the details, all their problems related to their financial, and साइमल्टेनियसली उनको जो भी उनका नीड है अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस देते हैं, ठीक है. दैट मीन्स वो सोशिएबल अच्छे से कनेक्ट है. एंड कस्टमर जब अपना बात बताता है, दैट मीन्स वी नीड टू हैव द पेशेंस, ठीक है. एंड उनके साथ हमें अच्छे से बात करना होगा, उनके पास बात सुनना होगा, ठीक है. सो देन ओनली हम जो एडवाइस देंगे दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर दैट कस्टमर, ठीक है. सो ही हिमसेल्फ कीप फ्री टू स्पीक टू कस्टमर्स, गाइड द स्टाफ्स. सो वो भी गाइड करते हैं, वो खुद से भी जाके कस्टमर के साथ बात करते हैं, जो भी स्टाफ को नीड होगा अकॉर्डिंगली वो गाइड भी करते हैं. और उनका जो टेबल है ऑलवेज क्लीन होता है, मतलब एक क्लीन लुक देता है, ठीक है. दैट मीन्स क्या है ना, उनके पास जो काम है, जितना भी काम है वो उसको अच्छे से खत्म कर लेते हैं, कोई पेंडिंग काम नहीं रखते हैं, ठीक है. सो दैट मीन ही कैन मैनेज टू कंप्लीट और शेड्यूल द वर्क अकॉर्डिंगली एंड ऑल्सो कंप्लीट द वर्क एफिशिएंटली. सो यहाँ से हमें जितना भी हम पढ़े हैं, तो मिस्टर सिंधे क्या है? मिस्टर सिंधे हमारा जो है इट्स ए टाइप बी. सो जितना भी है टाइप बी आपके पास जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पर मैच कर ले रहा है. जैसे कस्टमर के साथ अच्छा रेस्पॉन्स, स्टाफ के पास अच्छा रिलेशनशिप, और वो गाइड भी करते हैं और सब काम को अच्छे से खत्म कर लेते हैं. सो दैट उनके जो टेबल में कोई पेंडिंग काम जैसे दिख ही नहीं रहा है. सो इसीलिए जो भी स्टाफ्स एंड कस्टमर्स है वो हैप्पी है विद द मिस्टर सिंधे. अभी हम मिस्टर अदानी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है. तो कस्टमर एंड स्टाफ्स आर नॉर्मली हेजिटेड टू स्पीक मिस्टर अदानी. सो हेजिटेट मतलब ऐसा होता है कि वो बात करने से उनको एक अच्छा वाइब्स फील नहीं होता है, मतलब नॉर्मली बात करने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. और किसके साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं? जो नॉर्मली रेस्पॉन्स नहीं देता है अच्छे से और जो नॉर्मली अवॉइड करता है या लाइक दैट. सो पहले अभी हम यहाँ पर देख लेंगे इस केस में उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ही इज नॉर्मली engrossed in papers and files kept on his table. He often calls his peon to help him locate a particular paper or file. Many times he shows signs of nervousness. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है ना, वो उनका जो टेबल है
उसमें कम्प्लीटली बहुत सारा पेपर वगैरह पड़ा रहता है, नॉट क्लीन, ठीक है। वो कभी अपना जो काम मतलब सेटल डाउन जो है नहीं करते हैं और किसी और से कराते हैं। कभी कभी हम कराते हैं क्योंकि जिसका जो काम है, पर मेन बात है कि वो अगर सब काम को शेड्यूल करके ख़त्म कर देते हैं देन वहाँ पर ज़्यादा पेंडिंग काम नहीं रहता, मेन पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद है मेनी टाइम्स ही शोज नर्वसनेस। कोई भी काम अगर कोई रैंडमनेस, जैसे बैंक में हम काम करते हैं तो कोई भी हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनका डिफरेंट टाइप का उनका क्या रहता है, क्वेरी रहता है, ठीक है। सो उस क्वेरी को डील करने के लिए उनको जो नर्वस फील होता है, नर्वस अब कब हमें फील होता है, जब हमें अच्छे से हम नॉलेज गेन नहीं करते हैं। सो देखिए, हम नर्वस नॉर्मली रहते हैं फर्स्ट, जब तक हम उस काम को नहीं करेंगे तक हम टाइप ए में ही रहेंगे। सो यू नीड टू फेस दैट सिचुएशन, पर वहाँ पर वो जो है उनका नर्वसनेस रहता है। सो और जो कस्टमर से, जो भी स्टाफ से, उनके साथ शायद उनका बिहेवियर भी इतना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए सब उनसे, और उनको सोल्यूशन अगर अच्छे से नहीं मिला होगा देन कस्टमर विल नॉट फील कंफर्टेबल टू टॉक विथ यू और शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड सीक योर गाइडेंस, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो अदानी जी है मिस्टर सिंधे के बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट है, ठीक है। सो यहाँ पर कंप्लीटली अपोजिट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आपका टाइप ए को बिलोंग्स करते हैं मिस्टर अदानी जी, ठीक है। सो इस ऐसे आपका केस स्टडी एक रहेगा साइमल्टेनियसली। आपको ये वाला देखिए, यहाँ पर हम पढ़े तो हमें पता चल गया कि इनका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर हम पढ़े तो यहाँ पर भी हमें पता चल गया। तो यहाँ इस बेसिस पे केस स्टडी दे देगा। केस स्टडी में आपको फुल डाटा होगा, आपको याद करने का जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि टाइप ए टाइप बी में क्या क्या होता है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आप बस एग्जाम्पल के साथ याद रखिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जस्ट जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, आप उसको रिलेट करिए विथ योर वर्क, ठीक है। देन ओनली यू कैन इजिली एंजॉय दिस एचआर टॉपिक, बिलीव मी, ठीक है। सो पहले मेरे को भी वही लगता था, एंड later on when I start relating the things with the normal things or regular things going on in the branch, then I really enjoyed the HR, right? And try to make the small topics. Here you can also take the screenshot or take the small notes, that is what is type A. Just remember type A. You can easily remember that type B is the opposite of type A, right? सो इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस रहता है, उसके भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दिया हूँ, वही वाला आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चंस कैसे रहता है। ये रहा आपका केस स्टडी। यहाँ पर पूछा गया है कि मिस्टर सिंधे कौन से वाले कैटेगरी के हैं। सो यहाँ पर हमें पता है कि मिस्टर सिंधे अच्छे हैं, मतलब अच्छे से मैनेज करते हैं, सोशिएबल एंजॉय करते हैं, अपना काम को खत्म कर लेते हैं और कस्टमर के साथ अच्छे से डील करते हैं, इसीलिए उनका जो कैटेगरी हो गया कौन सा, टाइप बी का। और अदानी जी हमारा नर्वस फील करते हैं, अपना काम को अच्छे से खत्म नहीं करते हैं और अपना पेंडिंग काम रखते रहते हैं और कस्टमर स्टाफ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं अदानी जी से बात करने के लिए, इसलिए उनका हो गया टाइप बी, सॉरी दिस वन इज टाइप ए। दैट मीन्स अदानी जी इज ऑपोजिट ऑफ मिस्टर सिंधे। सो यहाँ पर पूछा है, देखिए सिंधे जी कौन से कैटेगरी के हैं, दैट इज टाइप बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अदानी जी कौन से कैटेगरी के हैं, दैट इज टाइप ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कट इट। सो होपफुली आपको ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, आपको इस वाला सेशन से आपको कंप्लीटली 2 मार्क्स मिल ही जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और ये रिपीट होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका केस स्टडी देगा, आपको पूछ लेगा कि कौन सा वाला टाइप है। सो देखिए बहुत ईजी है, और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और भी कुछ केस स्टडी लाने के लिए। और बस यू नीड टू ऑल्सो शो योर पार्ट टू मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर एंड मोर sessions for your preparation. Hopefully you like it and share with your friends, those who are preparing, and let them also subscribe to our channel and like, share all the things what we are sharing for your preparation, so that we can bring big community as soon as possible, right? So till the next session, just take care. आप अपना जो है प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखिए, ठीक है। और जस्ट प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। सो क्योंकि अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे, जो लास्ट कुछ दिन है अच्छे से आप अगर प्रिपरेशन कर लिए, देन यू विल एंजॉय द एग्जाम टाइम एंड विल क्लियर द एग्जाम इन वन गो, ठीक है। सो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब अपडेट भी मिल जाएगा और आपको जो भी PDF वगैरह है वो भी वहाँ पर हम अपलोड करते हैं, ठीक है। और डिस्कशन के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम कुछ आपका क्विजेस कंडक्ट करेंगे जब टाइम मिले। अभी टाइम मिला, सो इसीलिए मैं इसका टेस्ट स्टडी बना रहा हूँ। सो लेटर अगर टाइम मिल जाए देन विल ऑल्सो अरेंज ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो वी आर हैविंग मोर एंड मोर प्लानिंग, बस वी नीड योर सपोर्ट। सो चलिए फिर मिलते हैं न्यू अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।